اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون۔ صدق اللہ العظیم وصدق حبیبنا وحبیب رب العالمین۔ اللہم صل وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے آج کے اس اجلاس کے سرپرست محترم حضرت مولانا محمد عارف صاحب اشاعتی، اسی طرح آج کے صدر محترم ہمدرد قوم و ملت حافظ عظمت اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب اور ہمارے ہمدرد ساتھی مولانا شیخ اقبال صاحب مظاہری و دیگر علماء، ائمہ و حفاظ اکرام اور دیگر سامعین، بڑی دیر سے آپ بچوں کے پروگرام کو سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو، اس جمنے کو قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ ایک علماء، حفاظ اور ائمہ کا بڑا مجمع ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو خوش رکھے، اشاعت باد آباد رکھے، اس مکتب کو قبول فرمائے، طلباء و طالبات کو، ان کے اساتذہ اور والدین کو، معاونین، محبین، متعلقین کو، ہر ایک کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم چند اہم گزارشات، یہ بیان نہیں، یہ خطاب نہیں، یہ کوئی وعظ نہیں، ہم اس کے اہل بھی نہیں، لیکن وہ چند گزارشات جو ہمارے اکابرین پورے ملک میں لے کر گھوم رہے ہیں، اور وہ درد جو ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بس وہی سبق ہے جو آپ کو سنانا ہے۔ ہماری ترجیحات بدل گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی مرد عورت نیک اعمال کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اللہ کہتے ہیں ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ آخرت میں تو آدمی کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے خوشگوار زندگی، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ہر آدمی پاکیزہ زندگی کا طالب بن رہا ہے اور بنتا ہے، اور آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی پاکیزہ ہو، مجھے خوشگوار زندگی ملے اور میں بغیر کسی الجھن کے دنیا میں اپنی زندگی گزاروں۔ میرے بھائیوں، دو باتیں آج عرض کرنی ہیں جو اپنے بڑوں کا سبق ہے، ہم بھی ایک طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ موت تک طلباء کے فہرستے میں ہمیں شامل رکھے۔ میرے بھائیوں، ہماری ترجیحات بدل گئی، اور دوسری بات، ہم ایک صحیح بات کا غلط مفہوم سمجھ بیٹھے۔ ہم نے حیات طیبہ کو کیا رنگ دیا اور کیا معنی دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکیزہ اور خوشگوار زندگی کا مطلب اچھا مکان بنا کر اس میں رہنا، اچھے کھانے کھانا، اچھے لباس پہننا، اچھی آرام دہ سواریوں میں گھومنا،
اور اسی کو مقصد زندگی بنا کر اسی کے تگ و دو میں رہنا اور اسی کے لیے جدوجہد کرنا اور اسی کے لیے صبح سے شام تک محنت مزدوری کرنا، ملازم اپنے ملازمت پر، مزدور اپنی مزدوری پر، کھیت کرنے والے کسان اپنی کھیتیوں پر، کام کاج کرنے والے اپنے کام کاج پر، صرف ایک سوچ لے کر چلتے ہیں کہ ہمیں اچھا مکان بنانا ہے، ہمیں اچھی گاڑی لینی ہے، ہمیں اچھے کھانے کھانے ہیں، ہمیں اچھے لباس پہننے ہیں، ہمیں دنیا کی طرز زندگی اختیار کرنی ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب حیات طیبہ کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہیں پاکیزہ اور خوشگوار زندگی دیں گے۔ مفسرین نے حیات طیبہ کے کئی معنی بیان فرمائے، جس کا تعلق قناعت سے ہے، صبر سے ہے، شکر سے ہے، اطمینان قلب سے ہے، سکون زندگی سے ہے، اور روحانی بصیرت سے ہے، اور نور ہدایت سے ہے۔ مفسرین نے یہ سارے معنی حیات طیبہ کے بیان فرمائے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ہم سمجھتے ہیں ایک بندے کے پاس اچھا بنگلہ ہے لہذا وہ خوشحال آدمی ہے اور اس سے اللہ راضی ہے اور وہ خوش اپنی زندگی کے اندر خوش ہے۔ ایک آدمی کے پاس اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے، ہمارے یہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ چیزیں اور مادیت ہے۔ حالانکہ قرآن کریم ہمیں ایک تصور دیتا ہے اور قرآن کریم ہمیں ایک سوچ دیتا ہے، ایک فکر دیتا ہے، بالکل مغربی تہذیب کے الٹ، باطل ادیان کے الٹ، ویسٹرن کلچر نے اور یورپین تہذیب نے اور مغربی تہذیب نے جو ہمیں سمجھایا، قرآن اس کے بالکل برعکس سمجھاتا ہے۔ پوری مغربی تہذیب مادیت پر کھڑی ہے، پوری مغربی تہذیب حکومتوں پر کھڑی ہے، پوری مغربی تہذیب درہم و دینار پر کھڑی ہے، پوری مغربی تہذیب ڈالر کے اوپر کھڑی ہے، پوری مغربی تہذیب حکومتوں پر کھڑی ہے، پوری مغربی تہذیب ترقیات روزانہ نئی ایجادات پر کھڑی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام اس کے برعکس بالکل یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں موجود پر صبر آ جائے، تمہیں موجود پر قناعت کرنے والے بن جاؤ، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، تم ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں۔ جب عارضی ہے اور فنا ہونے والا ہے، کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں جو فنا کے داغ سے داغدار نہ ہو، بلکہ کائنات میں ہر چیز پر فنائیت کی جھاڑو چلنے والی ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں کہتے ہیں کل من علیہا فان، جیسے بچے نے اس پر نظم بھی پڑھا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ حکومتیں فنا ہو جائیں گی، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، بحر و بر فنا ہو جائیں گے، خشک و تر فنا ہو جائیں گے، رطب و یابس فنا ہو جائیں گے، مشرق مغرب فنا ہو جائیں گے، شمال و جنوب فنا ہو جائیں گے، عزت ذلت فنا ہو جائے گی، نفرت محبت فنا ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، ساری کائنات پر اللہ اپنی فنائیت کی جھاڑو چلانے والا ہے۔ پھر یہ عارضی دنیا کے لیے پوری زندگی کو کھپا دینا اور عارضی بنگلوں کے لیے پوری زندگی کو لگا دینا اور عارضی ڈگریوں اور عہدوں کے لیے پوری نسل کو کھپا دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت اکرمہ اور مجاہد یہ دیگر مفسرین کی جماعت یہ کہتی ہیں کہ حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی موجودہ زندگی اور موجودہ اسباب پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کہ مولا تو نے مجھے دال روٹی دیا، میں اس پر خوش ہوں، یہ حیات طیبہ ہے۔ اور آگے چل کے میں یہ کہوں، جس کا دل موجودہ چیز پر مطمئن ہو جائے گویا اللہ نے اس کو حیات طیبہ دے دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا مزاج اللہ نے حریص بنایا، انسان کا مزاج لالچی ہے، اس میں طمع کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اولاد آدم کو 2 سونے کی وادیاں مل جائے تو وہ تیسرے سونے کی وادی کی تمنا کرے گا۔ گویا کہ انسان کے حرص بڑھتی چلی جاتی ہیں،
लखपति आदमी करोड़पति बनना चाहता है और करोड़पति अरबपति और खरबपति बनना चाहता है। हर आदमी रोजाना इन फिक्रों के साथ सुबह कर रहा है और इन फिक्रों के साथ आरामगाह पे जा रहा है कि मेरे लाख के 2 लाख कैसे हो जाए, मेरे करोड़ के 2 करोड़ कैसे हो जाए, मेरे अरब के खरब कैसे हो जाए। मेरे भाइयों, फानी चीज के पीछे इंसान खप रहा है, पता ये चला यही तो इंसान की बेचैन जिंदगी है। और जिसकी जिंदगी में बेचैनी आ जाए वो बेकरार रहता है, वो मुंतशिर रहता है, उसे मौजूद से फायदा उठाना नहीं आता। और जो आदमी गैर मौजूद की लालच में जिंदगी गुजारता है वो मौजूद के नफे से, मौजूद से कमाहक का नफा नहीं उठा सकता। क्या मतलब ये है, अगर किसी नौजवान के पास बाइक हो छोटी वाली, जो आम बाइक होती हैं, अब नए बाइक निकल रहे हैं, उसके दिमाग में ये भूत सवार होता है कि मुझे तो अब पूरा गाड़ी लेनी है जो 2 लाख और 4 लाख की है, और जो जिसके पता नहीं एडवांस फ्यूचर है, और ये सारी चीज जो नई बाइक दुनिया के अंदर और शोरूमों में लॉन्च हो रही हैं। मेरे भाइयों, तो उसकी जो मौजूदा गाड़ी है उससे वो नफा नहीं उठा सकता, वो रोजाना इस फिक्र में बेचैन रहेगा वो गाड़ी मुझे कैसे आदमी नसीब होगी। और इंसान का अपनी जिंदगी में बेचैन हो जाना, मेरे भाइयों, पता ये चला कि अल्लाह ने उसे हयात तय्यबा नहीं दी। एक आदमी झोपड़े में रह रहा है और उसे अपने झोपड़े से वो नफा उठा रहा है, सुबह शाम मजदूरी करके आता है और झोपड़े में आराम से सो जाता है, दाल रोटी खाकर सो जाता है और उसका दिल मुतमईन है, रब करीम की तरफ आंख उठाकर आसमान की तरफ कहता है, मौला अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे आज दाल रोटी खिलाया है और आराम से तूने मुझे सुलाया है। फरमाया अगर दिल मुतमईन हो गया समझ लो अल्लाह ने हयात तय्यबा दे दी, समझ लो अल्लाह ने खुशगवार जिंदगी दे दी। इसलिए कि दुनिया ख्वाहिशात को पूरा करने की जगह नहीं है, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, किसी की पूरी ख्वाहिश दुनिया में मुकम्मल नहीं होने वाली, कहीं ना कहीं वो अधूरा रहेगा। ये बेकल और ये बेकरारी उसे परेशान करेगी। इसलिए सबसे बेहतरीन तजवीज और सबसे बेहतरीन इलाज हयात तय्यबा का यही है कि आदमी अपने मौजूद पर राजी रहे और जो चीज उसके पास नहीं है उस पर सब्र करे। अल्लाह दे दे कोई बात नहीं। अब मैंने जब ये आयत की आपके सामने तिलावत की और इसका मैं मफहूम बयान करने लगा हूं, हालांकि मकतब का जलसा है, आप सोच रहे होंगे इससे इसका क्या ताल्लुक। इसका इससे बहुत बड़ा ताल्लुक। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही? ये उलमा हमारे सर के ताज है, मैं इनके सामने आपको सबक सुना रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही? अगर सादे कपड़ों पे दिल मुतमईन है तो खुश रहो, यह इत्मीनान कल्ब जो अल्लाह ने दिया है। इसलिए मुफस्सिरीन कहते हैं जिसको अपने मौजूदा चीजों पर, मौजूदा मकान पर, मौजूदा गाड़ी पर, मौजूदा कपड़ों पर, मौजूदा खानों पर, मौजूदा चीजों पर जो अल्लाह ने हलाल रास्ते से उसे अता फरमाया, चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर उसका दिल मुतमईन हो गया तो समझ लो वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। इससे मैं सोच रहा था, जब ये तफसीर में पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था इस तफसीर के ज़िमन में हजरात उलमा, हुफ़ाज़ और अइम्मा भी आते हैं। क्यों? आपने किसी मौलवियों को, उलमा को और हुफ़ाज़ को धरना देते हुए नहीं देखा होगा कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई है। वो मौजूद पर सब्र करते हैं। क्यों? मुफस्सिरीन ने बड़ा प्यारा नुक्ता बयान फरमाया, हयात तय्यबा का मतलब यह है कि जो बंदा मौजूद पर राजी हो जाता है, अल्लाह के फैसले पर राजी होता है, तो अल्लाह उसे एक रूहानी बसीरत देते हैं। एक जिस्मानी बसीरत होती है, एक रूहानी बसीरत होती है, और वो रूहानी बसीरत के नतीजे में नूर हिदायत से फैज़याब होता है। और वो हिदायत का नूर जब उसे मिलता है मेरे भाइयों, फिर वो कायनात की सच्चाई और मादियत की हकीकत का मुशाहिदा करता है, जिसके नतीजे में उसे चीजों की हकीकत समझ आती है। इसलिए हाफिज कुरान मुतमईन है सूर के टुकड़ों पर, और आलिम दीन मुतमईन है तुम्हारी छोटी छोटी तनख्वाहों पर, और ये मुतमईन है अपने झोपड़ों में, इसलिए कि वो जानते हैं दुनिया का मुशाहिदा करते हुए जो अल्लाह उन्हें कुरान के उलूम की बरकत से जो नूर हिदायत और नूर रूहानी बसीरत अता करता है, वो समझ जाते हैं कुल्लु मन अलैहा फान। अगर 10,000 तनख्वाह मिले और 1 लाख तनख्वाह मिले, कुल्लु मन अलैहा फान, सवारी का नक्शा छोटा हो या बड़ा, कुल्लु मन अलैहा फान। एक आलिम दीन और एक हाफिज कुरान जब अपने रूहानी नजर और बसीरत से कायनात का और असबाब का और मादियत का
मुशाहिदा करता है तो इस नतीजे पर पहुंचता है, चीज बड़ी हो या छोटी हर एक को फना होना है, इसलिए फिर वो अपनी मेहनत पर राजी रहता है, अपनी कमाई पर राजी रहता है। मेरे भाइयों, आज सबसे बड़ी वबा यही है, हमने अपनी नस्ल को क्या दिया? हमने अपनी नस्ल को डिग्रियां सिखाई, डिग्रियों की कीमत बताई, कॉलेजेस का रुख करवाया, पैसों का रुख करवाया, दिरहम और दिनार का वक़्त बताई, और हमने बताया डॉलर कमाओगे तो तुम कामयाब, तुम्हारे पास बंगला होगा तो तुम कामयाब। क्या तुम नहीं देखते लोगों की उम्र 45 से 55 हो गई और बंगला बन रहा है और सवारियां खरीदी जा रही है और बैंक के लोन पर सवारियां खरीदी जा रही है, किस लिए? सिर्फ ज्यादा के तमा और लालच में। और फिर क्या होता है? 5 साल ये जिंदा रहता है, इसके बासर के बाल सफेद हो गए बंगला बनाते बनाते, और इसके गाल अंदर चले गए बंगला सजाते सजाते, और ये बुढ़ापे के दहलीज पे पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि ये मौजूद पर राजी नहीं, ये चाहता है मेरा बंगला ऐसा हो और मेरी गाड़ी ऐसी हो और मेरे खाने ऐसे हो और मेरे कपड़े ऐसे हो। हालांकि मेरे भाइयों, ये सारी चीज फना होने वाली है और इसके पीछे इतना लगता है, खुद भी लगता है, 2 छोटे भाई है उनको भी लगवा देता है, अगर बच्चे हैं उनको भी लगवा देता है, पूरी नस्ल फना होने वाली चीजों के पीछे लग रही है। मेरे भाइयों, ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। हालांकि हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न दुनिया हुल्वतुन खदिरतुन, दुनिया मीठी और सरसब्ज है, यानी बज़ाहिर ये रंगीनियां और रानाइयां हमें पागल और दीवाना और बेवकूफ बना रही है। हालांकि अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, अल्लाह ताला ने तुमको इसमें अपना खलीफा और नाइब बनाकर भेजा है। क्यों? फकैफ तअमलून, तुम क्या अमल करके आते हो? मेरे भाई, हमने अपनी नस्लों को क्या सिखाया? हमने अपनी नस्लों को दुनिया सिखलाई, हमने अपनी नस्लों को पैसों की कीमत सिखाई, हमने अपनी नस्लों को फना होने वाली चीजों के पीछे लगाया और खपाया, और हमने ये बताया ज्यादा आमदनी होगी तो हम में माशरे में बाइज़ शुमार होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा कमाना कोई गुनाह है, लेकिन ऐसा ज्यादा कमाना कि अल्लाह नजर ना आए, अल्लाह के अहकामात नजर ना आए, पैगंबर की जिंदगी नजर ना आए, बस पागल और दीवानों की तरह रोजाना बस पैसा 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 पैसा, रोजाना आदमी दुनिया की चीजें जमा करने में लगा हुआ है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक रिवायत अपनी सनद से नकल करते हैं कि एक जमाना दुनिया पे ऐसा आएगा कि लोग माल कमाएंगे, इतना माल कमाएंगे, और फरमाया इसकी कोई परवाह नहीं करेगा कि मेरे पास आने वाला माल, मेरे पास आने वाले दिरहम और दीनार, मेरे पास आने वाले डॉलर और पाउंड, मेरे पास आने वाला रुपया, ये हलाल के रास्ते से आया है या हराम के रास्ते से, ये कयामत की अलामत में से शुमार कर दिया गया। मेरे भाइयों, बताओ कि आज मुआशरा इसकी तरफ नहीं चल रहा है? हमने अपने नस्लों के अंदर भी यही चीज मुंतकिल की। और मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ दिखावे और लोगों को खुश करने के लिए, और याद रखना, लोगों को अगर सोने के निवाले भी खिला दिए जाए तो मेरी जात से वो खुश नहीं होने वाले, वो मेरे खिलाने में भी आएब निकालेंगे। मेरे भाइयों, हम उनको खुश करने के लिए अपनी दुनिया अच्छी बनाना चाहते हैं, अपने दस्तरखान पर 10-10 पकवान रखना चाहते हैं, अपने बंगलों को ऐसे बनाना चाहते हैं, अपनी गाड़ियां, इसमें ऐसे पागल और दीवाने हो गए, ना अल्लाह का कुरान याद रहा, ना अल्लाह का रसूल याद रहा। आओ तुम्हें उस जात की दुआ बता रहा हूं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यद अबरार अहमद मुख्तार, खातमुन नबिय्यीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे। मेरे भाइयों, अजीब दुआ है, सही बुखारी में भी मौजूद है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैगंबर की ज़बान है और पैगंबर के हाथ उठते हैं और पैगंबर ये दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन क़ूता, ऐ अल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आल और औलाद के रोजी को बकदरे गुजारे के बना दे, बस इतनी रोजी मुझे दे दे कि मेरा और आले मोहम्मद का गुजारा हो जाए। ये पैगंबर दुआ मांग रहे हैं। हदीस में एक लफ्ज आया दुआ में, अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आलि मुहम्मदिन क़ूता, क़ूत का मतलब उलमा से पूछिए, इतनी रोजी का मिल जाना कि खाने के बाद बचे ना, खाने के बाद बचे ना, जिसका हिसाब देना ना पड़े।
अगर छोड़ के मर गया तो हिसाब देना पड़ेगा। पैगंबर दुआ मांग रहे हैं, पता चला फिर पैगंबर ने क्या मांगा मेरे भाइयों, पैगंबर ने रोजी इतनी मांगी कि मेरा पेट भर जाए, आले मोहम्मद का पेट भर जाए, हम हिसाब किताब नहीं दे सकते। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अगर दौलत हम कमाएंगे और रखेंगे और उसका हक अदा नहीं करेंगे और उसमें ऐसे मसरूफ हो जाएंगे और दुनिया इतनी कमाएंगे और नस्लों को भी उस पर लगा देंगे और उनके सामने ना कुरान की अहमियत, ना अल्लाह की अहमियत, ना आखिरत की फिक्र, ना कब्र के मसाइल की फिक्र, मेरे भाइयों, तो फिर ये औलाद हमारे लिए वबाल जान बन जाएंगी। आज हाल ये है कि हमने सब कुछ दुनिया को समझ लिया, हमारे सुबह से शाम तक के प्रोग्राम में हर चीज शामिल है सिवाय मौत के। मौत हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं है। और जानते हो मौत एक ऐसी हकीकत है कि दुनिया में हर चीज को झुठलाने वाले हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अल्लाह का इनकार करेंगे, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार करता हो। जो यकीनी चीज है हमारे बच्चों की है, अंदर ये मुंतकिल करना है। और घरों में मुज़ाकरे किस चीज के हो रहे हैं? घरों में मुज़ाकरे सिर्फ दुनिया के हो रहे हैं। न अल्लाह से होने के मुज़ाकरे खत्म, कब्र के मसाइल की फिक्र खत्म, मैदान क़यामत में खड़े होने की फिक्र खत्म, हमारे अमाल तुलेंगे या हमारी बुराइयां तुलेंगी इसकी फिक्र खत्म, नबी को कल कयामत के दिन नबी के हाथ से जामे कौसर पीना है इसकी फिक्र खत्म। हम अपनी नस्लों में क्या मुंतकिल कर रहे हैं मेरे भाइयों? अपनी नस्ल पे अखलाक को सवारो, अपनी नस्ल को बनाओ। ये मकातिब के अंदर और दारुल उलूम और जामियात में हमारी नस्ल को अखलाकियात के एतबार से, दीन के एतबार से तैयार किया जाता है। मेरे भाइयों, हम अपनी औलाद में क्या मुंतकिल कर रहे हैं? ये सिर्फ तालीम है, असल तो उनको माहौल घर का मिलना चाहिए। अभी घर में क्या चल रहा है? सुबह शाम डिग्रियों की बातें, सुबह शाम चीजों की बातें। हजरत पीर जुल्फकार साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताब है मिसाली वालिदैन। हजरत एक जगह वाकया लिखते हैं और हजरत ये तखय्युली वाकया अगरचे है लेकिन इससे बड़ा सबक है कि हमने अपने बच्चों को अखलाकियात से आरी और खाली कर दिया और ये वबा फैल रही है घरों से, माँ बाप के दरमियान से। फिर मिसाल लेके समझाते हैं, एक बच्चे से बाप ने कहा बेटा पानी लाओ, या माँ ने कहा कोई चीज लाओ। उसने फ्रिज खोला, वहां से कांच का गिलास निकाला, अब जाकर लेकर जाने लगा, हाथ से उसके गिलास छूटा, कांच का तो फूट गया। तो माँ ने उसको थप्पड़ लगाई, एक थप्पड़ लगाई तो उसके दिमाग में पहला तीर ये लगा कि दुनिया में पैसों की कीमत है, रिश्तों की कीमत नहीं। मैं तो इनकी औलाद थी, एक 6 रुपये और 12 रुपये के कांच के गिलास के लिए मुझे थप्पड़ मारा गया, जबकि मैं तो इनकी औलाद हूं। आज ये पहला गैर महसूस हमला बच्चे के दिलो दिमाग पे लगता है। मेरे भाइयों, वो समझ जाता है कि दुनिया में पैसे की कीमत है, चीजों की कीमत है, रिश्तों की और तकद्दुस की कोई कीमत नहीं है। फिर वो समझ लेता है कि मुझे भी पैसा कमाना है। ये बीमारी जड़ पकड़ती है। आप देखें, अगर घर में कोई औलाद नुकसान कर दे तो बाप भी दो सुनाएगा, माँ भी दो सुनाएगी, और बाप अगर ज्यादा जाहिल हो तो बाप मारेगा। मेरे भाइयों, बच्चा समझ जाता है, समझ लेता है कि नहीं, यहाँ पर दिरहम दीनार की कदर है, पैसों की कदर है। और फिर होता यह है कि उसके दिमाग में ये बात जड़ पकड़ लेती है, रिश्तों का घर में कोई इज्जत और कोई वक़्त और कोई मर्तबा नहीं, इसलिए वो भी दिमाग चलाता है पैसे कमाने में। पीर साहब कहते हैं, अगर वो माँ ये कह देती कि बेटे कोई बात नहीं, आपसे गिलास फूट गया है, ये छोटी सी चीज है, आपके अब्बा से कहूंगी वो दूसरा लेकर आ जाएंगे, लिहाजा उसके सर पर हाथ रखती है, उसे सबक देती है। आइंदा वो एक पॉजिटिव, मुस्बत, तामीरी मिजाज रखने वाला बच्चा बनेगा। और उससे कितनी भी बड़ी गलती हुई तो वो माँ बाप से कहेगा, अब्बा जी मुझसे ये गलती हो गई है, अम्मी जान मुझसे ये गलती हो गई है, क्योंकि माँ ने जब गिलास फूटा है, सर पर से हाथ फेरा है और कहा बेटे कोई बात नहीं, कांच का गिलास है उसको ऐसे पकड़ते हैं। मेरे भाइयों, कांच का गिलास है उसे ऐसे पकड़ते हैं तो बच्चे के दिमाग में ये बात आती है कि मेरी कीमत मेरे माँ बाप के नजदीक बड़ी कीमती है, चीजों की कीमत नहीं है। तो याद रखना, ये तकद्दुस का बीज बोया जाता है, फिर ये रिश्ते परवान करते हैं। तो फिर बेटा भी अपने वालिदैन से टूट कर मोहब्बत करता है, टूट कर अपनी माँ को चाहता है, टूट कर अपने बाप से प्यार करता है। फिर ये घर बड़ा खूबसूरत घर बनता है जहां पर रिश्तों को वक़्त दी जाती है। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अकरिमु औलादकुम, तुम तुम्हारी औलाद की इज्जत करो। आज कितने लोग हैं, बाप खुद अपने बच्चे को कहता है गधे के बच्चे, और बाप खुद अपने बच्चों को लात मार के उठाता है
कितने बाप जाहिल और जहालत की वजह से ऐसे है जो अपने बच्चों से गाली से बात करते हैं, अगर कोई काम ना हुआ। हमारा समाज, हमारा मुआशरा कहां जा रहा है मेरे भाइयों? पैगंबर कह रहे हैं अकरीमु औलादकुम, तुम अपनी औलाद का इकराम करो, उनकी इज्जत करो। हम क्या समझते हैं जानते हो? बाप बन गए तो हम समझते हम घर के फिरौन है, हम बीवी से जैसे चाहेंगे बात करेंगे। नहीं, पैगंबर ने तुम्हारे लिए भी हद बंदी लिख रखी है कि हम बाप है। अगर अल्लाह ने हमें किसी औलाद का बाप बनाया है, हम समझते हैं हमारी हुकूमत है घर में, हम बच्चे को चाहेंगे जैसे बोलेंगे। मेरे भाइयों, गैर महसूस तरीके से गैर अखलाकी बातें करने की वजह से बच्चा इसी गैर अखलाकी माहौल में परवान करता है। फिर क्या वईद है, वो थोड़ा बड़ा होने के बाद बाप को माँ की गाली दे और खुद की माँ को माँ की गाली दे और फिर गलियों में गाली का मिजाज बने और 4 घर अगर ऐसे है तो पूरी गली में गाली का माहौल बन जाए। किसने दिया? कौन आया? अरे जिंदगी भर कुनूत नाज़िला पढ़कर यहूदियों को बदुआ देने वालों, मुझे बताओ कौन सा यहूदी तुम्हारे मेरे गली में आया था कि माँ बाप को गाली देना उसे सिखा कर गया है? हमने खुद अपने किरदार से, अपने अमाल से अपने बच्चों को गालीबाज बनाया है। कौन सा यहूदी और ईसाई आया था? कौन सा आरएसएस वाले आया था जो माँ को गाली देना सिखा कर गया है? ये तो मेरे तुम्हारे घरों से उठने वाली बुराइयां हैं। हम जा पा रहे हैं? असल हकीकत पर आओ। और मैं तुम्हें खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता, मैं आपको माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह नहीं कहलाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ मकातिब अपनी मेहनत कर रहे हैं, मदारिस अपनी मेहनत कर रहे हैं, उलमा अपनी जान खपा रहे हैं। थोड़ा आकर बैठो इस जगह पर और थोड़ा इस साइड आकर देखो, 5000 में काम करके दिखाओ। अल्लाह की कसम, एक हफ्ता पहले अगर तुम मस्जिद न छोड़ दो तो बता देना मेरे भाइयों, ये मौलवी नुमा लोग यकीनन इस रुए जमीन पर फरिश्ते हैं अल्लाह के। ये मौलवी, ये हुफ्फाज, ये रुए जमीन पर पैगंबर अलैहिस्सलाम को जीता जागता मौजूदा है, चलता फिरता मौजूदा है। ये तो अपना काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे आते, मैं एक सवाल आपसे करता हूं, जब बच्चे इनके पास आते तो बताओ बेटों के सरों पर टोपियां होती नहीं होती? अरे बोलो तो सही, मैं आपसे पूछ रहा, होती? बेटियां आती हैं उलमा के पास, सरों पर स्कार्फ होता नहीं होता? मुझे बताएं, बेटे टोपियां नोच कर अलमारियों में कब फेंकते हैं? जब वो तुम्हारे दरमियान में आते हैं। बेटियां दुपट्टे नोच कर उस वक्त अलमारियों में रख देती है जब वो अपने माँ के आगोश में आती है। मुझे बताओ, टोपियां उतारने की बीमारी किसके आगोश में लगाई गई और स्कार्फ और दुपट्टे नोचने की बीमारी किसने लगाई? क्या इन लोगों ने लगाई? फिर जमाना इन्हीं को ताना देता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने हक को अदा कर दिया, अब बिगाड़ कहां है वो देखो। टोपी कहां पहन के आ रहे, पता चला वहां सुधार है, टोपी कहां जाकर उतार रहे, समझ लो पता चला बिगाड़ वहां है। घरों में दुपट्टे उतारे जा रहे। कल शादी है, वही बच्ची जो अभी स्कार्फ पहनकर आई थी तो मां कहती है बुचड़ा डाल दे, और बुचड़ा जब डालेगी तो बुचड़ा दिखाना भी पड़ेगा, और दुपट्टा रहेगा तो वो दिखेगा नहीं, तो मां कहती दुपट्टा उतार। मेरे भाई बताओ हम जा कहां रहे हैं? इसलिए मैं एक बात कहने आया हूं और दर्द दिल के साथ आवाम से मेरा मुतालबा है। ये बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आका फरमाते तुम्हारी बेहतरीन कमाइयां तुम्हारी औलाद है। नबी के अल्फाज, क्या कह रहा हूं मैं, समझ आ रही मेरी बात? नबी क्या कह रहे हैं? तुम्हारी बेहतरीन कमाई तुम्हारी औलाद है। तुम्हारी बेहतरीन कमाई हलाल माल भी है, लेकिन सबसे बेहतरीन कमाई क्यों? क्योंकि तुम्हारे चले जाने के बाद ये तुम्हारे बेहतरीन वारिस बनेंगे या बदतरीन वारिस बनेंगे। मैं कुछ जुमला कह रहा हूं, ये आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तर्जुमान मफहूम समझा रहा हूं। बेहतरीन वारिस बनाना है तो बच्चों को दीनी राहों पर छोड़कर मरो, और बदतरीन वारिस बनाना है तो दुनिया के माहौल के हवाले कर वक्त कर। और जो औलाद बेहतरीन वारिस बनती है, बेहतरीन वारिस बनने का मतलब वो मर जाने के बाद दीन पर कायम है, वो हमारे मर जाने के बाद शरीयत पर कायम है, वो हमारे मर जाने के बाद कुरान पर बाकी है, वो हमारे मर जाने के बाद मस्जिद के आदी है, वो हमारे मर जाने के बाद सच्चाई सच बोल रहे हैं, वो हमारे मर जाने के बाद बहनों का हक दे रहे हैं, वो हमारे मर जाने के बाद लोग पड़ोसी से अच्छा मामला कर रहे हैं, वो हमारे मर जाने के बाद खैर के काम कर रहे हैं। यह औलाद बेहतरीन वारिस शामिल शुमार होगी और हम मर जाएंगे, इसका सवाब हमको नहीं मिलेगा कि तेरी औलाद रुए जमीन पर। हदीस पाक में आता है, मिशकात में रिवायत मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी लाया गया, उसका दर्जा बुलंद कर दिया गया। पैगंबर कहते हैं वो आदमी अल्लाह से पूछता है, मौला मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा जन्नत में मकाम क्यों बढ़ा दिया गया? अल्लाह कहते हैं रुए जमीन पर तेरे एक बेटे ने अल्लाह से इस्तिगफार किया, उस इस्तिगफार के नतीजे में अल्लाह ने तेरा दर्जा बढ़ा दिया। एक इस्तिगफार पे ये मकाम है। अंदाजा लगाइए, अगर पूरी औलाद जिंदगी के हर शोबे में नेक बनकर अगर हम छोड़ के जाएंगे तो हमारे कितने ऊंचे मकाम होंगे। तो आज हाल ये है
ہم خود یہ اندازہ کریں کہ اب بہترین اولاد اور بدترین اولاد کا معیار کیا ہوگا. تو میں آخری مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں کہ یہاں پر بچوں نے تعلیم حاصل کی, آپ نے اس تعلیم کے مطابق ان کو گھروں میں اس لائن کی تربیت دی. قرآن حدیث پاک میں صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لے کر آئے, کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. یہ پیغمبر کی خبر ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. مجھے بتاؤ اگر دیش کا پرائم منسٹر کوئی بات کی خبر دے تو لوگ کہتے پکی بات ہے, دنیا کا کوئی بڑا آدمی خبر دے لوگ کہتے پکی بات ہے. کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن والوں کو, قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے, سیکھنے سکھانے والوں کو کہہ رہے ہیں روئے زمین پر یہ بہترین لوگ ہیں. تو مجھے بتاؤ کہ پیغمبر سے سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو گویا یہ قرآن کے پڑھنے والے. اب یہاں پر انہوں نے قرآن پڑھا, یہ حدیث انہوں نے پڑھائی سمجھائی, بچے آپ کے گھر میں آئے, آپ کے ہی بچے اور آپ کے ہی گھر میں آئے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ ارے سمجھ میں آ رہی بولو تو صحیح. ناندورا والو ہوں ہاں تو کرو. یہ اپنے برار کی سٹائل ہے, یا تو منہ ہلانا پڑتا ہے یا پھر کم سے کم ہوں ہاں کرنا پڑتا. آپ ایسے سن رہے کہ میں راجستھان سے آیا, کوئی دوسری بھاشا بول رہا نہیں. اب جب گھر کے اندر بچے آئے, قرآن کی عظمت حافظ صاحب نے سکھائی, مولوی صاحب نے سکھائی, بچے گھر میں آئے تو دادا کا پیر لمبا تھا, بچہ قرآن لے کر کھڑا پیتی سے. دادا کو معلوم ہے بچہ مکتب سے آئے, دادا نے پیر نہیں سکھے, دادا اٹھ کے نہیں بیٹھے, ابا اٹھ کے نہیں بیٹھے, اماں اٹھ کے نہیں بیٹھی. بچوں نے مکتب میں پڑھ کر گئے کیا الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے, پورے دین کا ستون جس پر نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا. اب گھر میں جا کر دیکھ رہے ہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہے, اماں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, ابا کے ہاتھ میں موبائل ہے. ابا مغرب کے وقت میچ دیکھ رہے ہیں, اماں مغرب کے وقت سیریل دیکھ رہی ہیں. اب گھر میں یہ ماحول بنا ہوا ہے, دادی بھی ٹوٹے ہوئے دانت, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, وہ بھی جھاولی نظروں سے وہ بھی ذرا موبائل کو یوں کر کے دیکھ رہی ہیں. اور بچی کہہ رہی ہے میں تو مدرسے میں یہ پڑھ کر آئی تھی کیا الصلاۃ عماد الدین, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے گویا کہ کفر کر لیا. میرے بھائیو وہ دیکھتی ہے اماں کے ہاتھ میں موبائل, دادی کے ہاتھ میں موبائل, ابا کے ہاتھ میں موبائل, اور مسجد 10 قدم پر ہے, کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. اذان تمہارے میرے گھروں میں انقلاب نہیں لا سکی, وہ اذان جو اللہ اکبر مؤذن کہتا رہا اور گھر کے لوگ اسی حال میں پڑے رہے. مجھے بتاؤ نماز کی اہمیت مولویوں نے گھٹائی ہے کہ خود گھر کے اماں ابا نے گھٹائی؟ بگاڑ کہاں ہے؟ اذان ہوتے ہی سب چھوڑو, سب مرد مسجد کی طرف چلو, اور اماں اور دادی وضو کے لوٹے اٹھائے اور مصلے بچھائے جا رہے ہیں, اور لوٹے اٹھائے جا رہے ہیں, اور مسواک کی جا رہی ہے, اذان کا جواب دیا جا رہا ہے. تو بچہ دیکھتا ہے. سنو, بچہ استاد کے کتابوں اور پڑھانے سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ اپنے گھر والوں کے کردار سے, ان کے حرکات و سکنات سے سیکھتا ہے. بگاڑ ہمارے پاس. اس لیے اب کتنے لوگ خوش ہو گئے, یہ جو ہمارے مولانا شریف صاحب ہے کہاں ہیں, کتنے لوگ خوش ہوئے ماشاءاللہ. ان کے ابا بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور ان کی مائیں بھی اس پروگرام سن کر گئی ہوگی. آئندہ پروگرام اگر کرے تو ایسا پروگرام کرنا کہ جب بچہ یہاں پڑھ رہا ہے تو ابا کے پاس بھی ایک مائک ہو, بچہ جو پڑھ رہا غسل کے فرائض تو ابا سے بھی پوچھو تم بھی غسل کے فرائض سنو. اماں کے پاس ایک مائک دو, ان سے بھی کہو تم بھی غسل کے فرائض. نانا کے دکان پہ ماموں کی فاتحہ پڑھنا بہت آسان ہے. بچہ اپنے زندگی کو بنا رہا ہے, تمہاری زندگی کا کیا حال ہے؟ یہ سیکھا سکھایا بچہ جب تمہارے گود میں آئے گا تو تم بھول بھلکڑ لوگ اس کو وہ بھی بھلا دیں گے جو سیکھ کے آیا ہے. اسے سب کو برابر سیکھنا ضروری ہے. اور پھر اس کی مثال ہم نے ایک جگہ دی. آٹو ہے تمہارے, آٹو 3 پہیے کے, ارے آٹو ہے نہیں ہے, واہ واہ, ہمارا منہ یوں ہلایا جاتا یوں یوں. ہم گجرات میں ہمارے استاد تھے, وہ کہتے تھے یار تم مہاراشٹری میں بڑی عجیب عادت ہے, ایک زبان نہیں ہلاتے, منہ ہلاتی ہوئی. کھانا کھائے نہیں کھایا, ماشاءاللہ. تو 3 پہیے ہے. اگلا جو پہیا ہے نا, جو آٹو چلاتے ان سے پوچھو, ان کا پچھلے 2 پہیوں سے تعلق ہوتا ہے, ایسی ہے نا, اور پچھلے 2 پہیوں کا انجن سے تعلق ہوتا ہے. اگلا پہیے کی اسپیڈ ان 2 پہیوں کے اسپیڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ جتنا تیز دوڑے یہ اگلا پہیا, ارے بولو,
उतना तेज दौड़ेगा गोया के अगला पहिया बमिस्ल बच्चे के है, दाया पहिया बमिस्ल अब्बा के है, बाया पहिया बिस्ल अम्मा के है। अम्मा अब्बा पंक्चर है और बच्चे ही भाग रहा, भागेगा? अब्बा को गुस्ल के फराइज याद नहीं, अम्मा को सूरह फातिहा याद नहीं, और हम कह रहे हैं यार क्या हुआ हमारे बच्चों को, मौलवी साहब देखो ना सुधर ही नहीं रहा। ओ भाई सुधर, तुम्हारे न सुधरने की वजह से वो सुधर नहीं रहा है, बिगाड़ तो घर में। मेरे भाइयों मकतब वाले अपना काम कर रहे हैं। अब दुनिया इन्होंने, अल्लाह की कसम मैं बसीरत के साथ कह रहा हूं, अकीदत में नहीं, और मुझे कोई मुलम्मा साजी नहीं करना है, इन्होंने हुज्जत तमाम कर दी। कल कयामत का जब मंजर कायम होगा और हंगामे महशर बर्पा होगा, अल्लाह उलमा और हुफ्फाज और मकातिब में पढ़ाने वालों को खड़ा करेगा तो मेरा अल्लाह खुद कहेगा और फरिश्ते गवाही देंगे, मौला इन्होंने घर घर जाकर छोटी छोटी तनख्वाहों में उम्मत मोहम्मदिया के नस्लों को सवारा है, ये बिगड़े हैं तो इनके वालिदैन के आगोश में जाके बिगड़े। मेहनत बहुत हो रही है मकातिब की, मामूली बात नहीं है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, हाफिज नवेद, हम हमारे अंदर बात हो रही थी, बच्चे को प्रोग्राम वहां सुनाई दे रहा था, हम मुज़ाकिरा कर रहे थे, ऐसा लग रहा है दारुल उलूम के बच्चे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। कितनी मेहनत लगती है, तुम 4 बच्चे नहीं संभाल सकते, एक मौलवी 200 सुबह 200 शाम बच्चे संभालता है, अंदाजा लगाओ इससे बड़ा वली कामिल नानूरा में कोई हो ही नहीं सकता जो पूरे गांव के बच्चे संभाल ले। हमारे खुद के बच्चे जो हमारी कोख से जन्म ले वो संभले नहीं जाते, एक को पकड़ो तो दूसरा ऊपर नजर आता, दूसरे को उतारो तीसरा छत पे नजर आता, एक को पकड़ो दूसरा ये दरवाजे से भागता। लेकिन एक हाफिज का ये कमाल है, वाकईतन ये वली है कामिल है कि 400-400 बच्चों को पढ़ाते हैं, 200 बच्चों को एक आवाज में पढ़ाते हैं। मेरे भाइयों ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निकलो इन धोखों से, बिगाड़ हमारे घरों में है, हम नस्लें बर्बाद कर देंगे, हम हमारे हाथों से हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ये तो अपने हिस्से का सिखा रहे हैं। अब नमाज का माहौल, नमाजी बनाने के लिए नमाज की तालीम तो मिल गई, अब नमाज का माहौल मिलना चाहिए ताकि नमाज के लाइन की तरबियत हो सके। और माहौल कहाँ मिलेगा? फरमाया माँ के पास, बाप के पास, दादा के पास, घर की 4 दीवारी में। घर की 4 दीवारी के माहौल को देख के अंदाजा लगा लो, अगर घर की 4 दीवारी का माहौल दीनदाराना माहौल है, घर में सच बोला जा रहा है, घर में झूठ से बचा जा रहा है, घर में गीबत चुगली नहीं होती, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, घर में मियाँ बीवी एक दूसरे को गाली गलौज नहीं करते, घर के अंदर शराब नहीं पी जाती, घर में माल हराम नहीं लाया जाता, घर के अंदर हर एक की इज्जत की जाती है, घरों में बच्चों के साथ इज्जत के साथ पेश आया जाता है, घर में बड़ों की इज्जत होती है, छोटों के साथ शफकत के साथ मामला किया जाता, और घर के अंदर दीनी माहौल है, कुरान के हल्के लग रहे हैं, तालीम के हल्के लग रहे हैं, नमाजों के वक्त, अजानों के वक्त सारे काम काज घर के बंद कर दिए जाए। अंदाजा लगा लो आपको मर जाने के बाद भी आपकी औलाद इस माहौल में परवरिश पाएगी तो फिर ये आपकी औलाद भी दीन पर बाकी रहेगी। और अगर घर में झूठ बोला जा रहा है, घर में मियाँ बीवी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, वालिदैन और बच्चों में झगड़े हो रहे हैं, जायदाद के झगड़े हैं, भाई बहन के झगड़े हैं, भाई भाई के झगड़े हैं, घरों के अंदर माले हराम लाया जा रहा है, घर में बेपर्दगी है, घर में अजनबियों से इख्तिलात है, घर के अंदर शराब आम है, कोई बोलने वाला नहीं, नमाजों के वक्त किसी के सर पर जू नहीं रोकती, फिर सो जाओ, तुम्हारी मेरी नस्ल को दम मारने की जरूरत नहीं, हमने अपने हाथों से अपनी नस्ल को दफन कर दिया है और हम मर जाएंगे, ये हमारे लिए वबाल जान बना। इसलिए मेरे भाइयों, और इस वक्त मौजूदा जो हालात चल रहे, हम सैल्यूट करते और सलाम करते ऐसे हाल में और ऐसे माहौल में, जबकि हवाएं मुखालिफ, माहौल साजगार नहीं है, हर उठने वाली आंख अच्छी नहीं है, हर तरफ कदम कदम पे फितना है, और सारी दुनिया के निशाने पर अल्लाह का कलाम कुरान करीम, उलमा, मदारिस, मसाजिद, मकातिब, खानकाहें, दावत का काम, उलमा की जमातें, ये सब बातिल के निशाने पर है। ऐसी अपनी हाथ अपनी जान को हथेली पर रखकर मोहल्ले और गांव के बच्चों की और आपकी और मेरी नस्लों की ईमान अकीदे की तामीर करना, इनके ईमान अकीदे की मेहनत करना, वाकईतन ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। इन कुर्बानी देने वाले उलमा की कदर करो मेरे भाइयों, ये हमारे सरों के ताज है, इनसे बदगुमान न हो, ये हमारे सरों के ताज है। ये जिस लाइन में जिस अंदाज में मेहनत कर रहे हैं, पहला हक तो ये था कि आप खुद आलिम हाफिज बनते, न बन सके तो अपने बच्चों को बनाओ, उनको भी ना बना सके, जो बन रहे हैं उनकी मदद करो, और जो बने हुए हैं उनकी कदर करो, उनका जानी माली ताउन करो, अपनी सलाहियतें उनके साथ लगाओ। इसलिए कि इमाम बुखारी रिवायत लाए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमालों का दारो मदार नियतों पर है। मेरे भाइयों, आप अमल करेंगे, आपकी नियत ये होगी कि मैं हाफिज नहीं बन सका, लेकिन मैं हाफिज साहब की पूरी बच्चों को हाफिज बनाने में मदद करूंगा,
تو میرے بھائیوں کل میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی وہی نظر ڈالیں گے جو نظر ایک حافظ قرآن پر ڈالی جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مخلص ہو کر ان کے ساتھ رہیں. آؤ اللہ کی طرف، اپنے گھروں کے بگاڑ کو دور کرو، اپنی گلیوں کے بگاڑ کو دور کرو. اقبال کہتا ہے ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یا بہت بگاڑ آ گیا، بہت ماحول خراب ہو گیا. مجھے بتاؤ ماحول کون خراب کر رہا ہے؟ جنات، شیطان ہمارے گلیوں میں گھوم رہے ہیں؟ ارے ماحول ہم ہی سے بنے گا، ماحول ہم ہی سے بگڑے گا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر ایک کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر ہے، قوم کا مستقبل ہے. ہم سب مل کر پورے سماج اور معاشرے کی تعمیر کریں، ان کو صحیح اخلاقیات پر لے آئے، صحیح روایات پر لے آئے. ہمارا حال ایسا ہے، اگر ہم بن گئے نا تو ہم ولی بن جائیں گے. شاعر کہتا ہے بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا. بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا. اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے. کہ جب یہ بنتا ہے تو اعلیٰ علیین میں تذکرے ہوتے ہیں، جب یہ بگڑتا ہے اسفل السافلین میں ڈال دیا جاتا ہے. جب یہ بنتا ہے فرشتوں کے درمیان میں اللہ فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو میرا بندہ. رمضان آ رہے ہیں، آپ نے اپنی مسجدوں کی فضائل اعمال کی تعلیم میں حدیث سنی ہوگی. روزہ افطار کے وقت اللہ کیا کرتے ہیں؟ بندوں پہ فخر کرتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. ایسی بولتے ہیں نا، حدیث یہی ہے نا. اچھا ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، صرف وقت بدلتے، کھانا پینا نہیں چھوڑتے. صرف وقت بدل جاتا، شہری میں اور اچھا کھاتے، تازہ کھاتے، زیادہ کھاتے رمضان میں. اور اللہ کیا کرا؟ میرے بندے نے میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا. حدیث کے الفاظ ہے اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں. پتہ یہ چلا بہکا تو بہت بہکا، سنبھلا تو ولی ٹھہرا. اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے. اس لیے میرے بھائی نیت کرتے سب اپنے اپنے گھروں کے ماحول کو صحیح کرنے کی انشاءاللہ. میرے مجمع سے گزارش، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کریں گے نیت؟ یہ جو اولاد دین کی تعلیم حاصل کر کے آ رہی ہیں، ان کے تعلیم کے مطابق ان کو ماحول دیں گے؟ ارے دیں گے. ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، عہد کرو اللہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد باد آباد رکھے، اللہ خوش رکھے، علماء کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.